our chairperson for today's session, Dr. Sangeeta ma'am from CMT Degree College. Ma'am, please. Chair and co-chair. The title of my paper is Digital Learning Environment in Pre-Service Teacher Education, Issues and Challenges. I am Shrom Tripathi presenting this paper along with my guide, Dr. Justin Pradeep Sahai sir. Education and technology have influenced almost every part of our lives. In the present developing area, innovation in education technology may be most essential issue in any part of our lives. Nowadays, learning has become very beneficial for everyone, and anyone can access it from any part of the world. With the rapid advancement of technology and the changing paradigm of education, there is a need to explore various approaches that significantly help in teaching and learning. Education is the only medium with the help of which everyone can be directed toward the right path, and digital education is a kind of revolutionary step in the education world. In today's time, digital education fulfills most of our demand, and it provides us with the technology through which we can acquire any knowledge of the world from anywhere. Coming to us to learn about meaning of digital learning. Thank you, Mr. Shrom Tripathi. Next, I would like to call Poonam Giri, Research Scholar from CMT Degree College, University of Allahabad. Purnima Giri, sorry. We should be child-centered so that they can focus on what they want to do, so that they can less procrastinate, and the multiple entry and exit system will allow them so that they can continue the study from where they have left. Thank you. क्योंकि जो प्रोक्रेस्टिनेशन है वो सिर्फ एक फील्ड में नहीं, जैसे अगर हम इस एज ग्रुप को भी देखें तो प्रोक्रेस्टिनेशन हर जगह है। तो अगर हम प्रोक्रेस्टिनेशन को हटाना चाहते हैं तो हमें हर एरिया पे थोड़ा थोड़ा फोकस करना चाहिए। बट आई टेक योर सजेशन एंड आई विल ट्राई टू गिव माय मेमोरी। थैंक यू। In which digital learning can use to improve the political science pedagogy, such as interactive multimedia presentations, online discussion forums, social media, virtual field trip of important political institutions, online simulations, online courses and MOOCs and other dimensions. Another important aspect associated with it is that it will acquaint the students of higher education, especially with various digital methods and standard platforms of digital education. So against this background, the second section will cast light on the correlation between the NEP 2020 and digital learning in political science pedagogy, and in concluding portion I will throw light on the its major challenges along with its significance in the near future. So as the time it is very difficult in the digital platforms, but despite all these challenges we can see that there are several potential benefits of digital learning significantly in the political science pedagogy. And as technologies continues to evolve, the possibilities for innovative and impactful political science education will continue to expand. It totally depends upon how effectively students are using, teachers have been trained to use it in a proper manner. Thank you. Solving method, finding a solution on one's own or with the help of a group of classmates or a teacher, awakening critical thinking and using logical thinking based teaching style in the classroom so that real understanding can be developed among the students and they can be able to fulfill their important aspirations in life on their own. It has also been said in clear words that everything from curriculum development to classroom teaching and learning to evaluation, how much has been learned, should be determined critically and logically. Lastly, we conclude that critical pedagogy is a powerful and revolutionary educational concept and technique that strives to educate learners to think critically, question the status quo and engage with social and political issues. It highlights the significance of the instilling in students a sense of agency, social justice and equality in the classroom. Critical pedagogy encourages students. All education should equip students with models of critical action that they may carry with them
world. According to Ares, the objective of education is to enable students to critically assess social institutions and to act in the sphere of social justice. Now our next paper presenter is Dr. Poonam Singh Kharwar along with Bipin Chauhan and Ram Narayan Singh. So I request them to present. Courses. This integration reflects a commitment to reviving traditional wisdom within higher education, the NAAC system and heritage preservation. This is to cultural gatekeeper in higher education. The UGC guidelines advocate for the inclusion of courses on Indian philosophy, arts and sciences in higher education curricula. These guidelines mark a pivotal step in aligning higher education with India's cultural and knowledge heritage. Conclusion. This research underscores the significance of bridging traditional Indian wisdom with modern education practices. By infusing Indian knowledge and culture into higher education, India's educational landscape is poised to nurture individuals who are not only academically proficient but also deeply connected to their cultural roots. It represents a harmonious fusion of tradition and modernity, ensuring that India's rich cultural and knowledge traditions continue to thrive in the hearts and minds of future generations. Thank you. जिनके आधार पर व्यक्ति अपने व्यवहार को विनिर्दिष्ट करता है। शैक्षिक मूल्य के महत्व को अगर हम समझें तो इसकी स्वीकार्यता, इसके प्रति दृष्टिकोण, इसके प्रति शैक्षिक मूल्य को कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस कोई बालक दे रहा है, इन आयामों को रखा गया है। सामाजिक मूल्य में विद्यार्थियों के सामाजिक संबंध, सद्भाव आदि सम्मिलित हैं। आध्यात्मिक मूल्य में अनुशासनात्मक एवं परोपकारी जीवन शैली शामिल की गई है, इस श्रेणी में रखे गए हैं। वैज्ञानिक मूल वैज्ञानिक चिंतन एवं आधुनिक दृष्टिकोण आदि विद्यार्थियों के वैज्ञानिक मूल्य से संबंधित है। शोध क्रियाविधि, जिसमें उद्देश्यपूर्ण विधि का प्रयोग किया गया, न्यायाधीश चयन तकनीक का अध्ययन विधि में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। उपकरण शोधार्थी द्वारा स्वनिर्मित मूल्य प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है, जिसके अंतर्गत टोटल 5 आयामों से संबंधित 25 कथन बनाए गए हैं। प्रदत्त विश्लेषण के लिए प्रतिशत प्रविधि का प्रयोग किया गया है। आंकड़ों के विश्लेषण में हम समझ सकते हैं कि शैक्षिक मूल्य, सामाजिक, आध्यात्मिक एवं संवैधानिक वैज्ञानिक मूल्यों का विवरण इस प्रकार है, जो हम देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट की सहमति और असहमति का प्रतिशत। जैसे शैक्षिक मूल्य के आयामों को यदि हम समझें तो इसमें शिक्षक आदर्श, शैक्षिक महत्व, छात्र सक्रियता एवं अभिप्रेरणा, कक्षा में विचारों का प्रयोग, विद्यालय अनुशासन आदि सम्मिलित किए गए हैं। इस स्तर पर अगर हम देखें तो सामान्य विद्यार्थियों का प्रतिशत कुछ अधिक दिखाई देता है, जबकि मदरसों के विद्यार्थियों का प्रतिशत अपेक्षाकृत कम है। सामाजिक मूल्य में भी सद्भाव, सहायता, अच्छे पारस्परिक संबंध, समायोजन, मित्रता, पूर्ण व्यवहार सम्मिलित है, जिसमें परसेंटेज को देखा जा सकता है। आध्यात्मिक मूल्य में आप देख सकते हैं परोपकारिता, नैतिकता, आचार संहिता, अनुशासन, भावनात्मक सद्भाव। ये परसेंटेज का रेशियो जिसमें आप 95% विद्यार्थी सहमत हैं, केवल 5% विद्यार्थी असहमत हैं। इस तरीके से सामान्य विद्यार्थियों का प्रतिशत बताया गया है। संवैधानिक मूल्यों में जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता एवं राष्ट्र प्रेम, जिसमें विद्यार्थियों के प्रतिशत को हम देख सकते हैं ज्यादा भिन्नता दृष्टिगोचर नहीं होती है। वैज्ञानिक मूल्य जैसे वैज्ञानिक चिंतन, तकनीकी शिक्षा महत्व, आधुनिकीकरण, तार्किक चिंतन एवं विकासात्मक दृष्टिकोण। इसकी व्याख्या भी दी गई है, जिसे हम देख सकते हैं मदरसों के विद्यार्थियों द्वारा शैक्षिक मूल्य से संबंधित कुछ प्रकरणों में प्रतिशत का वितरण अपेक्षाकृत सामान्य विद्यार्थियों से कम है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे मदरसों का आधुनिक न होना, तकनीकी रूप से दक्ष न होना, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था इतनी अनुकूल न होना जिससे विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा मूल्यों को आत्मसात कर सके। सामाजिक मूल्य से संबंधित कथन नंबर 4 में अगर हम देखें तो समायोजन की क्षमता से संबंधित है, जिसमें मदरसों के विद्यार्थियों का प्रतिशत कम है। ऐसे कहा जा सकता है कि जो मदरसे के विद्यार्थियों में ज़्यादा एडजस्टमेंट एबिलिटी नहीं होती है इन कंपैरिजन टू जनरल स्टूडेंट्स। इसी तरीके से आध्यात्मिक मूल्यों में यहाँ पर हमें रिजल्ट दूसरे टाइप से नजर आता है। आध्यात्मिक मूल्यों के प्रतिशत में मदरसों के विद्यार्थियों का प्रतिशत ज़्यादा प्राप्त हुआ है, जबकि सामान्य विद्यार्थियों का प्रतिशत कम प्राप्त हुआ है। संवैधानिक मूल्य, इसमें प्रतिशत में अधिक विभिन्नता दृष्टिगोचर नहीं होती है। वैज्ञानिक मूल्य में भी सामान्य विद्यार्थियों का प्रतिशत अधिक दिखता है और मदरसों के विद्यार्थियों का प्रतिशत अपेक्षाकृत कम नजर आता है। कुछ सुझाव मैंने बताए हैं। कहा जा सकता है कि मूल्यों को विकसित करने में विद्यार्थियों को अधिक जागरूक एवं अभिप्रेरित करने की आवश्यकता है। शिक्षण संस्थानों को दक्ष बनाना, मूल्य उन्मुख बनाना
नागरिक मूल जीवन कौशल, सामुदायिक कार्यों में सहभागिता आदि को शिक्षा का अभिन्न अंग बनाने जाने की आवश्यकता है। थैंक यू सो मच। रश्मि रिसर्च स्कॉलर है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में। इनका टॉपिक है एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड टीचर एजुकेशन इन द लाइट ऑफ एनईपी 2020। Cultural and ethical values, practical training, professional development, student-centric pedagogy, outcome-based education. In conclusion, experiential learning is a valuable approach in teacher education because it aligns with the principles of effective teaching and provides teacher trainees with practical experiences that prepare them for the complexities of the classroom. By engaging in experiential learning, aspiring educators can develop the skills, knowledge, and attitudes necessary to be successful and impactful teacher in today's diverse and dynamic educational setting. Experiential learning is a pedagogical approach that aligns with several key principles and goals of continuing teacher education. It supports the development of reflective 21st century. Therefore, integrating experiential learning into teacher education program can contribute to the successful implementation of the policies vision for education reform in India. परिचय उसमें आपको थोड़ा अनौपचारिक खबर बताता हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता पढ़ने का समय है। देखिए मैंने जो अपना टॉपिक है, मेरा टॉपिक है कि वर्तमान परिस्थितियों में विद्यार्थियों के जीवन में मूल्य समावेशन के प्रति प्राइवेट कोचिंग की भूमिका का क्या महत्व और क्या अध्ययन है। तो चूंकि मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ, बहुत सारे विद्यार्थी बाहर से आते हैं कोचिंग पढ़ने और भी ऐसे एक शहर है कोटा। मेरी मुख्य समस्या मैंने इस वजह से है कि उसी तरफ शुरू से कॉलेज से आता जाता था, मैंने देखा कि हजारों की संख्या में विद्यार्थी आ रहे हैं। अच्छा, ये तो बात ठीक है कि विद्यार्थी कोचिंग पढ़ रहे हैं, लेकिन जो विद्यार्थी जो सिर्फ कोचिंग विद्यालयों की भूमिका को छोड़ दे रहे हैं और सिर्फ कोचिंग में जा रहे हैं, हमने आजकल मैंने एक नया कॉन्सेप्ट सुना है जिसे डमी विद्यालय कहा जाता है। ये एक नया कॉन्सेप्ट आया है। इसमें क्या होता है कि बच्चे जो अभिभावक होते हैं वो बच्चों का नामांकन एक ऐसे विद्यालय में कराते हैं कि जहाँ उन्हें औपचारिक रूप से जाने की आवश्यकता नहीं होती है। वो वहाँ पर सिर्फ एग्जाम देते हैं और जैसे कि हमारी भी स्पीकर मैंने शुरू में बोला कि आजकल सिर्फ आप पैसे दीजिए और डिग्री ले लीजिए, लेकिन वास्तव में समस्या ये उभरती है कि डिग्री तो आपको मिल जाती है, लेकिन वो बच्चे जब बाद में कक्षा 12 पास करते हैं और कॉम्पिटिशन के क्षेत्र में जो समाज में उतरते हैं तो उनसे जो एक देश के लिए जो एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में एक व्यवस्था उपस्थित होनी चाहिए, जो उनका व्यवहार होना चाहिए, आचरण होना चाहिए, जो उनके अंदर एक विवेक उत्पन्न होना चाहिए, उसकी कमी हमें हमेशा से खलती है और जो भी उनके अंदर मूल्य होने चाहिए तो उसकी कमी हमेशा खलती है। तो इसी से रिलेटेड मैं कुछ फैक्ट्स लिया हूँ, सिर्फ ये कहावत की बातें नहीं है कि सिर्फ जो है कोचिंग में ऐसा हो रहा है, विद्यालय में ऐसा, मैं कुछ फैक्ट्स लेके आया हूँ। इसी वजह से मैंने इस पेपर को और इस चीज़ को मैंने लिखा है रिसर्च पेपर, और आप सभी विद्वान जनों सामने इसको प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। हमारे भारत सरकार की बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है जिसे हम NSSO के नाम से जानते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के नाम से जानते हैं। इसने भारत में शिक्षा पर सामाजिक पारिवारिक उपभोग नाम से एक रिसर्च किया, जो 2014 में जब इन्होंने 66,000 परिवारों पर लगभग रिसर्च किया, इन्होंने ये पाया कि लगभग 26% बच्चे, लगभग 710 लाख स्टूडेंट्स वो प्राइवेट कोचिंग में ट्यूशन लेते हैं 2014 में। इसी को जब इन्होंने रिवाइज किया 2018 में, तब उन्होंने 1,13,757 परिवारों पर पुनः सर्वेक्षण किया। तब परिणाम क्या आया? तब ये परिणाम आया कि जो संख्या पहले 26% थी वो संख्या बढ़कर 2018 में 50% हो गई, यानी 4 सालों में लगभग दोगुनी वृद्धि हुई। और ये बालक ये सिर्फ माध्यमिक शिक्षा के में, उच्च माध्यमिक शिक्षा के आंकड़े हैं, ये कंपटीशन में आगे वाले बच्चों के आंकड़े नहीं है, क्योंकि मुख्यतः जब बच्चा इंटर पास कर जाता है उच्च माध्यमिक शिक्षा तक जो औपचारिक शिक्षा में अंतिम पढ़ाते हैं, विद्यालय में कक्षा 12 तक की शिक्षा होती है, उसके बाद विद्यार्थी अलग अलग स्ट्रीम में अलग अलग पढ़ाई करते हैं। तो वहाँ तक एक समाज में जो विद्यालय औपचारिक संस्था उसके पास एक ताकत रहती है कि बच्चे के मूल्य में, बच्चे के समाज में बच्चे को किस तरह से प्रतिष्ठित करना है उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसलिए मैं उच्च माध्यमिक स्तर तक की ही जो है ये लिया हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर बच्चों के तरह से परिपक्व समझा जाने लगता है, तो उनके अंदर परिवर्तन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर इसके बाद और ये सिर्फ जो है और इसके अलावा माता
एक गार्जियन। वहीं पे प्राइवेट कोचिंग में सिर्फ कोचिंगों के लिए वो खर्च करते हैं 20,804 रुपये, ये एक एवरेज है। और इसके अलावा भारतीय मानव विकास सर्वेक्षण ने एक रिसर्च किया, उसने पाया कि 24 घंटे प्रति सप्ताह के हिसाब से जो एक विद्यार्थी है वो कोचिंग में अपना समय व्यतीत कर रहा है। और आजकल हम जनरली सुनने को मिलते हैं कि जब माता पिता या बाबा बच्चे को अपने घर से कोचिंग नहीं छोड़ते हैं, जरूर कहते हैं बेटा टाइम से आ जाना, तुम्हें कोचिंग इसके बाद जाना है। तो हमें मुख्य समस्या ये आई कि कोचिंग आजकल जो विद्यार्थी हैं और जो अभिभावक, सोचिए ऐसी स्थिति आ गई बच्चे को डमी स्कूल में भेजते हैं, जबकि विद्यालय एकमात्र मूल्य विहीन उत्तर था उनका। उन्होंने एक महिला की बेइज्जती की, इंसल्ट की, आपको इतना योग्य मानकर उसका वो क्वेश्चन था, माँ का ममत्व प्रेम, हर माँ चाहती है मेरा बच्चा सारे गुणों से संपन्न हो, लेकिन विज्ञान का वो उत्तर था, इसलिए वैल्यू विहीन उत्तर है। और विवेकानंद का सेम सिचुएशन में विवेकानंद की एकदम अद्भुत अनोखी पर्सनैलिटी थी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही तेज। शिकागो में लेक्चर के बाद एक महिला ने मुझसे कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ कि हमें जो है जो संतान होगी वो आपकी तरह खूबसूरत और तेज होगी। तो वो विनम्र होकर घुटने के बल ऐसे बैठ कर नीचे और मैं अगर ऐसी बात है तो आप मेरी माँ बन जाइए, मैं आपको पुत्र के रूप में आपका मैं पुत्र बन जाता हूँ। और तो आप ये देखिए मूल्य के साथ उत्तर है। और विज्ञानवाद क्या है? विज्ञानवाद ने उत्तर दिया एक महिला किसी की एक तरह से बेइज्जती करती है, तो ये अंतर है। इसी तरह से विषयों का भी होता है। मैं आज को यही समाप्त करूँगी क्योंकि समय और आज के कार्यक्रम 9 साल। हाँ जी, तो बहुत